So now we are discussing a new problem. That problem name is your all pair shortest path. So before this problem we have already covered the problem of single source shortest path. So in the single source shortest path problem we have to find out the shortest distance from a source to all other vertex of a graph. So for this problem, for single source shortest path, we have covered the three algorithm. The first one is the Bellman-Ford, the second one is the DAG, the third one is the Dijkstra algorithm. So now we will cover the problem of all pairs shortest path. So all pairs shortest path means we have to find out the shortest path between all pairs of vertex in a graph. This problem might try in making a table of distance between all pairs of city for a road atlas. So you can think, suppose they have the 5 city in a map. So we have to find out all the distance between these 5 cities. Suppose A to B, B to C, A to all the other vertex, B to all city or vertex, C to all vertex, D to all vertex, and E to all vertex. Means you can say that that problem is known as your all pair shortest path when we are find out the shortest distance between all pairs of vertex in a graph. So that problem maybe you can already we are already discussed the single source shortest path problem. So by the single shortest path you can also think that we can find out the all pair shortest path. How? Simply if we run the single source shortest path for each vertex, then obviously we are find out the all pair shortest path. अगर आप हर वर्टेक्स के लिए सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ रन कर दो तो वी कैन फाइंड आउट द ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ सोल्यूशन. मीन्स आपने वहाँ पे केवल एक सोर्स को कंसीडर किया था, फिर आप सेकंड वर्टेक्स को सोर्स कंसीडर करो, फिर थर्ड को. मीन्स जितने भी वर्टेक्स होंगे उन सभी वर्टेक्स के लिए आप सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ को कॉल करो. बट what will be the problem will be your complexity. So हमें पता है बेलमेफोर्ड में हमारा जो टाइम आया था द टाइम इज यूर ई इंटू वी हमारा रनिंग टाइम आया था. तो इन द ई इंटू वी, तो जब हम हर वर्टेक्स के लिए रन करेंगे तो वो हो जाएगा ई वी स्केयर. तो हमें पता है जब डेंस आपका ग्राफ होता है तो ई की वैल्यू आपकी वी स्केयर होती है. तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी द कॉम्प्लेक्सिटी इज यूर big of v की पावर 4 when we are run the Bellman-Ford. For the Dijkstra algorithm सेम हमारी कॉम्प्लेक्सिटी अज्यूम की थी e log v. तो इन दैट केस हम जब हर वर्टेक्स के दैट इज़ द v, जब हम वर्टेक्स के लिए रन करेंगे दैट इज़ कम आउट योर e इज इक्वल टू वी स्केयर. तो v की पावर 3 log v फॉर Dijkstra. So in that case that is a part we find out the solution, but we can reduce that part, we can reduce the time. So time can be reduced using two concepts which are in our syllabus. The first one is the shortest path and matrix multiplication, and the second one is the Floyd-Warshall. So we reduce the time is reduced to your big of v की power 3. So let's take an example. Suppose we have given a graph. In this graph we have 5 vertex. So we have to find out the all pairs shortest path. So obviously the graph will be given is your direction and the edge can be negative. So if there is negative weight cycle, then we cannot find out the shortest path. Same in the case of the single source shortest path, if the negative weight cycle is given, we also not find out the shortest path. Same here, if there is a negative weight cycle, so we cannot also find out the shortest path in the all pairs shortest path problem. So in the all pairs shortest path there are the 5 vertex. So we have to find out the shortest distance from 1 to all vertex, 2 to all vertex, 3 to all vertex, then 4 to all vertex, then 5 to all vertex. So
suppose that we have find out the shortest distance from first vertex. So first to 2 we have find out the shortest distance, first to 3, first to 4, first to 5. So in that case the shortest distance is shown in the yellow line. The yellow line means from first vertex to 5 vertex we have find out the shortest distance, that is the -4. First vertex to 4 vertex we have find out the shortest distance to 1 to 3 we have find out the shortest vertex shortest distance, that is -3. First to 2 we have find out the shortest distance, from 1 to 2 we have find out the distance is 1. So the path is your, if you are taking the path from 1 to 2, the path will be 1 to 5, 5 to 4, 4 to 3, 3 to 2. That will be the path for 1 to 2. So in that case when we are find out the shortest path, so we have to find out two part. One is the distance, so that is the distance from 1 to 1 the distance is 0, 1 to 2 the distance is 1, 1 to 3 the distance is your -3, 1 to 4 the distance is your 2, and 1 to 5 the distance is your -4. Along with the distance we have to find out the PV value, means पाई की वैल्यू हम जो सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ की प्रॉब्लम में फाइंड आउट करते हैं, सेम हेयर वी हैव टू फाइंड आउट द PV वैल्यू. So 1 to 1 obviously there is no PV, the value will be null. 2 to 1 to 2 the PV will be your 3, 1 to 3 the PV will be 4, 1 to 5 the PV obvious है, that is the PV is your 1. So same part when we are find out the shortest distance we have find out two things, one is the distance and one is the PV value. So that is the case when we are taking the source as the first vertex. The same concept will become when we are consider 2 as the source. So if we are taking the 2 as the source, so you can see the shortest distance. So in the shortest distance you can take the yellow line is your shortest distance, shortest path. So from 2 to 4 the shortest distance is 1, 1 2 to 3 the shortest distance is your -4. So the path is your 2 to 4 then 2 to 3. Same part 2 to 1 अगर हम shortest distance find out केस में 2 to 4 and then 4 to 1 that is your 3. Then अगर हम 5 पे reach out करना चाहते हैं from 2, so the path will be 2 to 4 then 4 to 1, 1 to 5 the distance come out is your -1. So in the same part we have to find out two part, one is the distance and second one is the PV. So that is the example we are taking ki how we are finding when we are finding the result. So we are basically find out two part, one is the distance and the second one is the PV. So you can find out same part, we can find out the shortest distance for the 3 as a source, then 4 as the source, then 5 as the source. So if we are consider the all pair shortest path, we have simply use some data structure. We have simply use how we will represent the data structure. So we already know for representation of the graph we have used the matrix. So in that case we have used two type of matrix. One is the edge matrix, means जो आपकी weight होगी between vertex I to j, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एज मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, जिसको हम किस मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करें, W मैट्रिक्स से हम रिप्रेजेंट करेंगे. द सेकेंड मैट्रिक्स ओवियस है, वी आर यूज द शॉर्टेस्ट पाथ जो आपकी फाइंड आउट होगी उसके लिए वी आर यूज द L मैट्रिक्स जो रिजल्टेंट होगा. रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगी आपके पास, L मैट्रिक्स होगी जिसमें आप शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करोगे फ्रॉम वर्टेक्स I टू वर्टेक्स J बाय द एंट्री I J एंट्री उस मैट्रिक्स में देख के यू कैन फाइंड आउट द I to J मैट्रिक्स. Along with these two matrices, we are again use one more matrix. That matrix is your periodic matrix. That is means जो आपकी पाई की वैल्यू थी वो हम सेम कंसेप्ट के करस्पोंडेंस periodic मैट्रिक्स यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे all pair shortest path में जो आपका सोल्यूशन होगा that will be come into your matrix form. So हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स गिवन होगी,
हमारे पास एज मैट्रिक्स गिवन होगी, डिस्टेंस दिया होगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट पाथ, मीन्स आपके पास एक एल मैट्रिक्स बनेगी एंड वी हैव टू फाइंड आउट अगेन वन मोर मैट्रिक्स दैट इज द पिवडेसल मैट्रिक्स। सो ये आपकी 3 मैट्रिक्स आपकी यूज होंगी जब हम ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ की बात करेंगे। तो नाउ टेक द एग्जांपल वन बाय वन। सपोज हम जो एज मैट्रिक्स कह रहे हैं उसमें हम जो आपके वेट गिवन होगा उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। सो W इज योर मैट्रिक्स यूज होगी आपकी एज मैट्रिक्स के लिए। अगर I इज यूर इक्वल टू J, अगर आपका I इक्वल टू J है दैट मीन्स सेम वर्टेक्स पे रीच आउट करने के लिए जो छोटा डिस्टेंस होता है वो क्या क्या वैल्यू होती है आपकी 0, तो उसकी एंट्री आपकी 0 होगी। सो अगर I कोमा J आपकी एज उस ग्राफ में गिवन है तो वो WIJ जो उसका वेट होगा वो वहाँ पे वैल्यू आपकी आ जाएगी उस मैट्रिक्स में। अगर वो एज नहीं है आपकी ग्राफ में तो उसकी वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी वैल्यू को हम इन्फिनिटी वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपकी मैट्रिक्स होगी, एज मैट्रिक्स होगी। द नेक्स्ट मैट्रिक्स वी आर यूज द शॉर्टेस्ट पाथ के लिए यूज़ करेंगे, एल मैट्रिक्स की यूज़ करेंगे जिसमें हम शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करेंगे। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल, ये आपकी W मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। तो यू कैन सी डैट कि 1 से 1 दैट इज़ ऑब्वियस हमारे कितने वर्टेक्स हैं ग्राफ में, 5 वर्टेक्स हैं। तो आपकी मैट्रिक्स जो होगी वो 5 बाई 5 की होगी, ऑब्वियस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 के करस्पोंडेंस, या यहाँ स्पेस नहीं तो इसलिए वी आर रिप्रेजेंट है। तो 1 के करस्पोंडेंस ये डिस्टेंस है 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4 एंड 1 से 5। तो अगर आप गिवन ग्राफ में देखो 1 से 1 कोई ऑब्वियस है सेम वर्टेक्स, तो वैल्यू डिस्टेंस क्या होगी आपकी 0। 1 से 2 पाथ दिया हुआ है तो वैल्यू यहाँ पे वेट एच की वैल्यू के करस्पॉन्ड जो वेट है वो यहाँ पे वैल्यू लिख लोगे, द वैल्यू इज योर 3। अब 1 से 3 देखो वैल्यू क्या गिवन है हमें ग्राफ में 8, तो ये वैल्यू 8 होगी। 1 से 4 कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है आपका, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी इन्फिनिटी। 1 से 5 द वैल्यू विल बी योर -4। सेम पार्ट ये हमने फर्स्ट वर्टेक्स के लिए लिया। अब सेकंड वर्टेक्स की आप एंट्री करोगे, सेकंड से 1 कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है तो वैल्यू हुई इन्फिनिटी। सेकंड से सेकंड 0, सेकंड से थर्ड कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है तो इन्फिनिटी। 2 से थर्ड आपका पाथ है तो वैल्यू इज़ 1। 2 से 5 वैल्यू इज़ योर 7। तो सेम यू कैन फिल दिस मैट्रिक्स, आप इस मैट्रिक्स को आप फिल कर सकते हो, बना सकते हो इजीली। सो नाउ कम ऑन द पार्ट, जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं तब हम कौन सी मैट्रिक्स यूज़ करें, तब हम एल मैट्रिक्स ही यूज़ करें। तो 1 से 1 को शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो, 1 से 2, 1 से 3। तो हमारी जो शॉर्टेस्ट पाथ की जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी आपकी एल मैट्रिक्स होगी। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप देखो 1 से 2 जो शॉर्टेस्ट पाथ हमने कैलकुलेट किया था, आई थिंक इससे पहले सेम एग्जांपल हमने किया था, वो हमने फाइंड आउट किया था 2 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2। तो आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया था वो क्या आया था आपका 1 आया था। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी आपकी 1। सेम 1 से 3 आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू -3। ये कैसे फाइंड आउट किया, ऑब्वियस हम एल्गोरिथम करेंगे जिसकी हेल्प से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे सेम एक और मैट्रिक्स हमें यूज़ करनी पड़ेगी जो हमारी प्रीडेसेसर मैट्रिक्स होती है, पाई मैट्रिक्स होती है। तो 2 का प्रीडेसेसर क्या होगा, 2 से पहले हमें कौन से वर्टेक्स पे रीच आउट करना पड़ेगा 3, तो वहाँ पे एंट्री 3 होगी। तो प्रीडेसेसर में यू कैन सी यहाँ पे वैल्यू आपकी 3 कैसे फाइंड आउट हुई है। ऐसे ही 1 से जो 3 वर्टेक्स है उसके लिए जो पाथ आया था, पहले हमें 3 से पहले किस वर्टेक्स पे पहुँचना होगा 4 पे। 4 से 5 के करस्पॉन्डेंस देखते हैं तो 5 से पहले आपकी वैल्यू क्या थी 1। तो 4 के लिए एंट्री यहाँ पे 5 है एंड 5 के लिए यहाँ पे 1 है। 1 से 1 कोई डायरेक्ट नहीं है तो वैल्यू क्या हुई आपकी नील हुई। तो ये आपकी 2 इंपॉर्टेंट रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी। 1 इज़ द पाई मैट्रिक्स, 1 इज़ योर एल मैट्रिक्स। तो हमें क्या गिवन होगा, हमें एज मैट्रिक्स दी होगी, मतलब W मैट्रिक्स दी होगी। तो जब हमारा एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट के लिए 2 मैट्रिक्स आपकी प्रोड्यूस होंगी, 1 इज़ द एल, 1 इज़ द पाई। तो हम जो सिंगल शॉर्टेस्ट की पहले इस एल्गोरिथम पे आते हैं। जो पहला एल्गोरिथम है आपका वो फर्स्ट एल्गोरिथम है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो शॉर्टेस्ट पाथ एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन
मतलब जो हमारा एल्गोरिथम शॉर्टेस्ट पाथ के लिए बनेगा वो ऑलमोस्ट सेम है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के लिए जो हमारा एल्गोरिथम यूज़ होता है, ऑलमोस्ट उसका सेम कंसेप्ट हम शॉर्टेस्ट पाथ ऑल पेयर में फाइंड आउट करते हैं। जो सेकंड एल्गोरिथम है दैट इज़ फ्लॉयड वार्सल, तो उसका कंसेप्ट अलग है, पहले एल्गोरिथम का कंसेप्ट अलग है। बट ये जो दोनों एल्गोरिथम है, ये दोनों एल्गोरिथम आपकी जो अप्रोच यूज़ करते हैं वो अप्रोच यूज़ करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज़ करेंगे ये दोनों एल्गोरिथम आपके। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आप सभी को याद होगा कि वी आर यूज़ द 4 स्टेप, हम 4 स्टेप यूज़ करते हैं, पहले करेक्टराइज करते हैं, फिर इसको रिकर्सिव डिफाइन करेंगे, फिर उसको बॉटम अप फैशन से सोल्व करते हैं, फिर हमारा सोल्यूशन बनता है। तो आई विल कम ऑन द फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम इज यूर ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ में जो पहला एल्गोरिथम है उसको हम सिंपली कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो उसके स्ट्रक्चर के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है वो सिंपली कंसेप्ट क्या यूज़ कर रहा है कि हमारे पास ऑब्वियस है हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है किसी फर्स्ट वर्टेक्स से वी के वर्टेक्स पे। तो V1 से V के हमें सपोज करो कोई पाथ फाइंड आउट करना है, तो उस पाथ में हम अज्यूम कर लेते हैं, सपोज करो कि उसमें आपके पास m नंबर ऑफ एजेस आपके एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इन दैट केस दे आर द 2 पॉसिबिलिटी कि आपके पास ग्राफ में सपोज करो m एजेस हैं, तो आपके पास जो i वर्टेक्स से j वर्टेक्स का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उस पाथ में मान लेते हैं कि m एजेस है। अगर सपोज करो नहीं m एजेस, तो उसमें केस में आपकी एजेस कितनी हो जाएंगी, m-1 एजेस हो जाएंगी। तो अगर हम कह दें कि आपने i वर्टेक्स से j वर्टेक्स का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है, उसमें आपकी m नंबर ऑफ एजेस यूज़ होंगी। तो दे आर द 2 पार्ट की ऑब्वियस है। एक पाथ आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो कि i से j आपके पास जो पाथ है वो इंस्टेंट की m एजेस की बजाय आप कितनी एजेस से फाइंड आउट करो, m-1 एजेस से आप उसको फाइंड आउट करो। द सेकेंड पार्ट इज़ यूअर कि आपने फर्स्ट पॉइंट आई एम रिपीटिंग कि आप कह रहे थे कि i से j आपके एटमोस्ट m एजेस होंगे। द फर्स्ट पॉइंट वी आर से डेट कि हम i से j इंस्टेंट ऑफ m एजेस हम m-1 एजेस से वो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर लेते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज यूअर कि j से नियर अबाउट, j से जस्ट पहले आपका एक वर्टेक्स है दैट इज़ द k वर्टेक्स। तो आपने कहा कि i से j तक आपके एटमोस्ट एजेस होंगे, तो वी आर से डेट कि j से जस्ट पहले आपका एक वर्टेक्स है k वर्टेक्स। तो अब आपकी जो प्रॉब्लम होगी, आप i से k शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करोगे यूजिंग m-1 एजेस प्लस आपका जो वर्टेक्स है k से j डायरेक्ट पाथ होगा क्योंकि इसके लिए एक ही एज यूज़ होगी। तो वेटेज ऑफ यूर k टू j। तो यहाँ पे वी आर से डेट कि हमारी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के 2 सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं कि i से j आपके जो एटमोस्ट m एजेस थे वो m एजेस या तो आप उनको m-1 एजेस से शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब एक एज आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, या फिर क्या कहोगे कि एक वर्टेक्स आपने j से पहले एक वर्टेक्स लिया k, तो आप शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करोगे i से k यूजिंग m-1 एजेस प्लस वेटेज ऑफ यूर k टू j। तो हमारी जो प्रॉब्लम होती है, द प्रॉब्लम इज यूर हैविंग 2 पार्ट कि आप शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर दो m-1 एजेस से। द सेकेंड पॉइंट कि आप m-1 एजेस से k वर्टेक्स तक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट किया प्लस वेटेज ऑफ आपकी k टू j आपकी वो सोल्यूशन में ऐड हो जाएगी। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बना। तो इस स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए, स्ट्रक्चर को रिकर्सिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी आर टेकिंग ए वेरिएबल, हम एक वेरिएबल यूज़ करेंगे। द वेरिएबल इज़ यूर L हम एक वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। उस वेरिएबल में हम सिंपली जो मिनिमम वेट होगा किसी भी पर्टिकुलर पाथ के लिए वो वैल्यू हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे वी आर डिफाइनिंग L की पावर एक टाइप से m है i, j। तो अगर हम इस टाइप से कोई वेरिएबल ले रहे हैं
तो उसका मतलब क्या होगा कि आप मिनिमम वेटेज फाइंड आउट कर रहे हो किस किस वर्टेक्स के बीच में, आई से लेके जे वर्टेक्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर रहे हो, एंड उसमें कितनी एटमोस्ट आपकी एजिस होंगी, एम नंबर ऑफ आपकी एजिस होंगी। तो आई एम रिपीटिंग कि आपका जो रिकर्सिव सॉल्यूशन है उसमें हम एक वेरिएबल टर्म यूज़ कर रहे हैं एल एम आई जे। एम मीन्स एटमोस्ट, एम एजिस, आई जे का मतलब कि आप शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर रहे हो फ्रॉम आई वर्टेक्स टू जे वर्टेक्स। सो अगर m की वैल्यू 0 है उसका मतलब क्या होगा, m का वैल्यू अगर 0 है उसका मतलब क्या होगा कि आप i इक्वल टू जे है, दैट मीन्स i इक्वल टू जे है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0। जब हम m इक्वल टू 0 कह रहे हैं तो कोई भी एज नहीं है, इसका मतलब उस वर्टेक्स से i वर्टेक्स से j वर्टेक्स के बीच में। तो वो कब होगा, जब i की वैल्यू j के इक्वलेंट होगी, तो वो वैल्यू क्या होगी आपकी 0। अगर सपोज करो i इक्वल टू जे नहीं है तो ऑब्वियस है मल्टीपल एज हो सकती हैं, तो हम एल आई जे 0 जब वैल्यू है तो वैल्यू क्या होगी आपकी इन्फिनिटी होगी, दैट इज़ द स्टार्टिंग वैल्यू। उसके बेस पे हम अपना वैल्यू स्टार्ट करेंगे। तो जब आपकी m की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो हमारे पास दो सोल्यूशन थे, या तो आपका जो m की वैल्यू थी वो आपकी m-1 एज से शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करो, या फिर हम एक k वर्टेक्स ले लेते हैं तो i से k आपने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट किया m-1 एज से प्लस वेटेज ऑफ यूर k टू j। सो इन दोनों में जो आपका जो शॉर्टेस्ट होगा दैट वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ यूर एल आई जे एम की, वो वैल्यू आपकी फाइंड आउट होगी। तो वी आर टेकिंग, हमारे पास दो केस बन जाएंगे, मतलब अगर मैं जनरल करूं तो एल आई जे एम की वैल्यू क्या होगी, एल आई के m-1 प्लस डब्ल्यू के जे। तो इन पार्ट में जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा वो आपकी एल आई जे एम की वैल्यू बन जाएगी। सो दैट इज़ अवर सेकेंड स्टेप, वी विल कम ऑन द थर्ड स्टेप। सो थर्ड स्टेप में ऑब्वियस हम इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। अगर मैं जनरल टर्म में कहूँ कि हमारे पास वेटेज दी हो, मैट्रिक्स दी होगी, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें एल आई जे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक टाइप से आपकी मैट्रिक्स n इंटू एन ही बनेगी, सेम पार्ट। तो हम सबसे पहले हम L1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बॉटम अप फैशन में, हमें रन करते हैं। तो सबसे पहले L1 फिर L2 फिर L3 अप टू Ln-1 हमारा एक टाइप से हमारा लूप चलेगा। तो इस पार्ट को यू आर टेकिंग अज्यूम डेट थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, बट जब हम इसको मैथमेटिकली सोल्व करेंगे तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो बेसिक स्टेप क्या है कि हम L1 फाइंड आउट करते हैं, L2 L3। तो पहले हम सोल्व आउट करते हैं, फिर आई विल कम ऑन द एल्गोरिथम पार्ट। तो द एल्गोरिथम पार्ट इज यूर कि सबसे पहले हमें L1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब L1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो L1 का मतलब क्या होगा कि आपको एक एज यूज़ करनी है। डैट मीन्स जो W की वैल्यू है आपके पास वही सेम वैल्यू किसकी होगी, आपकी L1 की होगी। तो ये गिवन ग्राफ है आपके पास, इन गिवन ग्राफ से जब आप W मैट्रिक्स बनाओगे तो सेम आपकी L1 की मैट्रिक्स बनेगी। अब L1 से हम L2 मैट्रिक्स बनाएंगे। अब L2 का मतलब क्या होगा कि कितनी नंबर ऑफ एजिस यूज़ करनी है आपने, 2 एजिस एट मोस्ट यूज़ करनी है। तो 2 एज आपने यूज़ करनी है एट मोस्ट, तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ योर L2। तो आई राइट डाउन हेयर कि पाथ आपने वो फाइंड आउट करना है कि उस पाथ में कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एजिस हो सकती हैं, मैक्सिमम उसमें 2 एजिस हो सकती हैं। हम यहाँ पे एट मोस्ट कह रहे हैं, मतलब 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो वो पाथ फाइंड आउट करना है जो मिनिमम होगा। कंसिडर दैट पार्ट कि 0 1 2 उन पार्ट से वी विल कंसिडर द L2 एज। अब सिंपल सी बात, अगर हम सिंपली बात करूँ, मैं फर्स्ट वर्टेक्स की बात करता हूँ। तो आपने फर्स्ट वर्टेक्स से ये पाथ फाइंड आउट किया था, तो 1 से 5 आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ है, 1 से 4 आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या थी, इन्फिनिटी। कैन वी मेक द 1 से 4 हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग टू एजिस, हाँ कर सकते हैं, 1 से 5 एंड 5 से 4। तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, द डिस्टेंस विल बी यूर 2। तो डिस्टेंस आपका 2 हो जाएगा।
तो यहाँ पे वी आर मेकिंग चेंज कि आपका 1 से 4 पे वैल्यू आपकी 2 होगी। अकॉर्डिंग टू और भी अगर आप वर्टेक्स पे रीच आउट करोगे फ्रॉम वन टू अदर, तो उस केस में आपका शॉर्टेस्ट पाथ चेंज नहीं होगा एट यूजिंग एट मोस्ट 2 एजेस। अब 2 से 2 वर्टेक्स की बात करते हैं, सेकेंड वर्टेक्स पे पहुँचते हैं। तो 2 पे पहुँचने के बाद दैट इज़ द पार्ट कि कैसे हमने 2 फाइंड आउट किया। अब 2 से आप अगर आप पाथ फाइंड आउट करना चाहते हो तो 2 से वी कैन रीच आउट, 2 से 1 की बात कर रहा हूँ पहले। तो 2 से 1 पहले वैल्यू क्या थी आपके पास, इन्फिनिटी थी। तो अब इन्फिनिटी थी, अब आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो 2 से 1 पे। तो डैट इज़ द 1 + 2 वैल्यू क्या होगी आपके पास, 3 होगी। बाकी सेम 2 से 3 अगर हम देखें वैल्यू, पहले वैल्यू इन्फिनिटी थी, अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। 2 से 4 पे गए एंड 4 से 3 पे गए। तो इस पाथ में 2 एजिस आपके एग्जिस्ट कर रही हैं, तो वैल्यू क्या होगी आपके पास, -4। 1 पे भी कोई चेंज नहीं होगा, 7 पे भी कोई चेंज नहीं होगा, 3 से 1 केवल 2 एजिस से नहीं फाइंड आउट कर सकते आप उसको। देन 4 पे कोई चेंज नहीं हुआ, फिर 0 पे कोई चेंज नहीं होगा। फिर हम जाते हैं 3 से 4। अगर हम 3 से 4 पे देखें, हम पहुंच सकते हैं पहले 2 से 1 देन 2 से 4। तो ये पाथ कितना हो जाएगी, वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, रिप्लेस हो जाएगी 5। देन सेम 3 से 5 देखें तो 3 से 2 एंड 2 से 5, तो ये वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट होकर आपकी 11। सो सेम वे हम 1 बाय 1 वो चेंजेस करते जाएंगे। जैसे आप अगर 4 से अगर आप 2 पे देखते हो तो 4 से 2 हम रीच आउट कर सकते हैं बाय 4 से 3, 3 से 2, तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। देन नेक्स्ट वैल्यू आपकी चेंज होगी 4 से 5 पे, तो यू कैन रीच आउट 4 से 1 एंड 1 से 5। तो ये चेंजेस होंगे आपके। अगर मैं अब लास्ट एंट्री पे आता हूँ, द लास्ट एंट्री इज करस्पॉन्डेंस टू योर 5। तो 5 से 1 पहले डायरेक्ट नहीं था, बट आप अब फाइंड आउट कर सकते हो। पहले 5 से 4 पे गए, फिर 4 से 1 पे गए, तो वैल्यू क्या हो गई 8। 5 से 2 पे नहीं, 2 एजिस से नहीं कर सकते हम, 3 एजिस से कर सकते हैं, तो उसको इन्फिनिटी छोड़ेंगे। देन 5 से 3 दैट वैल्यू इज़ यूअर 5 से 4 एंड 4 से 3, तो वैल्यू आ गई कैलकुलेट होके आपकी 1। देन 6 एंड 0 विल बी मेक नो चेंज। तो ये वैल्यू आपने कैलकुलेट की है यूजिंग द एटमोस्ट 2 एजिस। सेम पार्ट अब हम 3 एजिस के लिए कहेंगे, फिर 4 के लिए, ठीक है। तो एटमोस्ट 3 एजिस, फिर 5 के लिए ऑब्वियस है, फिर एटमोस्ट 3 एजिस में अब 3 एजिस आपकी यूज़ होंगी। अब यू कैन सी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो चेंज होगा आपका, बाकी कोई चेंज नहीं होगा आपका। एग्जाम्पल के लिए अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट पाथ हम फाइंड आउट कर रहे हैं 1 से 3 पे, सो 1 से 3 पे पहली वैल्यू क्या थी आपके पास, 8 थी। बट अब हम शॉर्टेस्ट उसको चेंज कर सकते हैं 1 से 5, फिर 5 से 4 गए, फिर 4 से 3 गए, तो वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी -4 + 6 -5, तो -9 + 6 कितनी वैल्यू होगी आपके पास, -3। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आपको चेक करनी पड़ेगी। जो सा डिस्टेंस आप रिड्यूस कर सकते हो वो चेंज आप 1 बाय 1 करते जाओगे। सेम 3 से 1 अब आप शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट कर सकते हो, तो उसकी वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होके आएगी, द वैल्यू इज़ योर 7। कैसे, 3 से 2, 2 से 4, 4 से 1, तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी आपके पास 7। तो ऐसे आप सभी चेंजेस करते जाओगे। सेम ये 4 एजिस के लिए होगा एंड लास्ट स्टेप आपका 5 एजिस के लिए होगा। सो आई थिंक यू कैन कैलकुलेट इट, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो एटमोस्ट 4 एजिस के लिए ये एंट्री हुई। फिर नेक्स्ट एंट्री हमारी 5 एजिस के लिए होगी, तो 5 एजिस में हमारा कोई चेंजेस नहीं होगा एंड दैट इज़ द फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा अकॉर्डिंग टू
according to the algorithm we have used the shortest path and matrix multiplication. तो ए वन पॉइंट की जो हमारा स्टेप चल रहा है, जो लूप एल्गोरिथम रन हो रहा है इसमें, वो सेम है जो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ चुके हैं. तो आई विल कम ऑन द एल्गोरिथम पार्ट. ये आपका आई थिंक यू कैन फाइंड आउट कि आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लाई का एल्गोरिथम है. थ्री लूप यूज़ होते हैं, आई जे के, एंड ये आपका पार्ट यूज़ होता है. सो जो हमारे यहाँ पे एल्गोरिथम यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट किए, सेम यहाँ पे नंबर ऑफ रो फाइंड आउट किए, एक मैट्रिक्स के लिए ली एल आई जे शॉर्टेस्ट पाथ में, तो यहाँ पे सी मैट्रिक्स यूज़ करें. फिर आई जे का लूप चल रहा है, यहाँ पे भी आई जे का लूप चल रहा है. यहाँ पे एल आई जे की वैल्यू हम इन्फिनिटी कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू 0 कर रहे हैं, बस ये चेंजेस है. फिर के का लूप चल रहा है. इंस्टेंट की आपका जो एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम रन हो रहा है, ये जो हमने रिकर्सिव फार्मूला यूज़ किया था, एंड यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो रहा है. तो दैट इज़ द चेंज कि यहाँ पे आपका सी इक्वल टू 0 की जगह एल आई जे इन्फिनिटी हो रहा है, एंड जो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते थे वो स्टेटमेंट आप इस स्टेटमेंट से रिप्लेस हो जाए. दैट्स वाई वी आर से दैट एल्गोरिथम इज योर शॉर्टेस्ट पाथ एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. रीजन बिट इज दैट कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो एल्गोरिथम था, ऑलमोस्ट सेम एल्गोरिथम हमारा शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करता है.